کہ آپ مطلب 2 دن پہلے بول رہے تھے کہ اگر کوئی 5 روپے کا دودھ اگر چڑھا بھی دیتا ہے شیو جی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ 5 روپے کا دودھ اپنی شردھا سے لوگ چڑھا رہے ہیں. آج بھارت میں بہت سارے شیو جی کے مندر ہیں اور ہر جگہ لاکھوں لوگ 5 روپے کا بھی اگر دودھ چڑھا رہے ہیں تو 5 لاکھ روپے کا دودھ ندی نالوں میں بہہ جا رہا ہے. تو اگر اس چیز کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے, اس پیسے کا اگر کسی اچھے کام میں اگر لگا دیا جائے تو وہ یہ ویسٹ ہونے سے اچھا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے یہ بات جو بولی ہے یہ آپ نے پکچر دیکھ کر بولی ہے, ایک پکچر بنی ہے اس پہ. ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار وہ ہے گنیش چترتھی. آپ جانتے گنیش کو؟ گنیش چترتھی, گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے, لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی, گنپتی. اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے, عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے. لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے, پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے, اور یہ بہت آسان ہے. ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان لوگوں کو آپ گالی مت دو, نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے, اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ, آپ کا گنیش کون ہے, آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو. ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی, آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے, پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو دیکھتے او ذاکر صاحب آئے, وہ امیجیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان پہ ڈسکاؤنٹ دیتے, کچھ لوگ فری بھی دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا, حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے جب تک آپ ان کا مذہب نہیں قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
वकालू लयदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन और नसारा। वो लोग कहते हैं, यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते, तिल्का अमानियुहुम, ये बकवास है बकवास। कुल, उनसे कहो, हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते, जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो, कुल हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस, बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हाथ बुरहानकुम, उनको अपना सबूत पेश करने कहो, जब सबूत पेश करते तो क्या हमें मान लेना चाहिए? हमें जांच पड़ताल करना चाहिए, क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। जब भी कोई आपको शनाख्ती कार्ड दिखाता है, आप देखते हैं वो सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को। अल्लाह ताला कहता है, उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है, उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे। लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज, हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं, और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं, क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे, हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है। 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा, कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। अल्लाह ताला फरमाते, जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है,
बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हातु बनानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस, बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए, हमें जांच पड़ताल करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को? अल्लाह ताला कहता है उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं, और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है, 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा, कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस्मानी हालत से जिंदा है क्या उनका इंतकाल हो गया? और हमें कबूल करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, उनकी कब्र मदीना में है। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम वो जिंदा है कि मर गए? और हमें कहना पड़ेगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा, वो पैगंबर जो मर गया वो बड़ा, कि वो पैगंबर जो जिंदा है वो बड़ा? कौन बड़ा, वो जो जिंदा है कि वो जो मर गया है? जिंदा है वो बड़ा है। भाई साहब कह रहे हैं जिंदा है वो बड़ा है। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पर मजबूर करेंगे, और हम मुसलमान हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते।
ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में आके हमको पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचिंग बैग पता है, पंचिंग बैग जिससे प्रैक्टिस करते बॉक्सिंग, हमें पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें डोर मैट, पांव पोछने का जो आता है, पांव पोछने का मैट, पांव पोछने की चीज इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और जब हम जाके पूछते हैं हमारे कोई मौलाना से क्या जवाब देने का, बोलेंगे शैतानी सवाल है, उनसे बात मत करो। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में अंदर आके हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। वो अगला सवाल करते हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनने कोई भी मौजूदा किए? हाँ बहुत से किए। हम जवाब देंगे बहुत से किए। आपको कोई भी मौजूदा पता जिसमें उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कि कुरान में कोई भी आयत नहीं है, सही हदीस में कोई भी हदीस ने जिसमें यह जिक्र होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे में जान डाली। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहि सलाम क्या उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कुरान की आयत है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। हाँ उनने मुर्दों में जान डाली। तो कौन बड़ा, वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा कि वो शख्स जो मुर्दों में जान नहीं डाल सकता बड़ा? कौन बड़ा, वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा कि जो मुर्दों में नहीं जान डाल सकता बड़ा? सवाल पूछेंगे आपको लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद और वालिदा थे? हाँ वालिद भी थे और वालिदा भी थे। ईसा अलैहि सलाम उनके वालिद और वालिदा थे? वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं थे। अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला ने उनको मौजूदे के जरिए पैदा किया बिना वालिद के। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा, जो शख्स वालिद के जरिए पैदा होता है वो बड़ा कि जो शख्स बिना वालिद पैदा होता है? कौन बड़ा, कौन बड़ा? सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में घुस के हमारा कुरान, हमारा बुरहान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। रोना है मुस्लिम उम्मा पे, क्योंकि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ते ही नहीं। कुरान मजीद में सबके जवाब है, सबके जवाब है। इनके जवाब देना बहुत आसान है लेकिन हम कुरान मजीद समझ के पढ़ेंगे फिर ही हम इनका जवाब दे सकेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में कई आयतों के जरिए हमें फरमाते किस तरीके से इन लोगों में दावत करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो ए अहले किताब, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब नहीं बनाएंगे। फन्तवल्लो, और उसके बाद अगर वो मुड़ जाए, फ़कुलू शहदू बिन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि मैं मुस्लिम हूं। अल्लाह ताला इस आयत में हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से गैर मुसलमानों से बात करना चाहिए। तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। कम से कम मुंह तो खोलिए। लेकिन जब हमारे मुसलमान भाइयों से मैं पूछता हूँ कि आप दावत क्यों नहीं करते, तो वो कहते जाकिर भाई इंशाअल्लाह जब मैं आलिम बन जाऊंगा तो मैं दावत करूंगा। वो समझते हैं कि वो शेख दीदात, शेख अहमद दीदात जैसा बनना चाहते हैं,
और जब वो शेख अहमद दीदार जैसा बनेंगे तो उस टाइम वो दावत करेंगे। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में, वो कहते बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन वर्स। अगर आप एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुतालिक, आपका फर्ज है कि आप दूसरे तक पहुंचाएं। आप एक भी अगर आयत जानते हैं इस्लाम के बारे में, आपका फर्ज है कि वो दूसरे लोग, जो लोग नहीं जानते, उन तक पहुंचाएं। हर मुसलमान कम से कम कलमा तौहीद तो जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इतना तो जानते, कम से कम ये तो कहो, अपने गैर मुसलमान दोस्तों से कहो कि अल्लाह एक है। कम से कम ये तो कहो। मुझे किसने एक आर्टिकल भेजा संडे मेल में से, जिसमें कहा गया था कि क्रिश्चियन मिशनरी अब कश्मीर पे हमला कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने कम से कम कश्मीर में 10,000 मुसलमानों को ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया। दावे के साथ कह रहे हैं कश्मीर में जो हम कहते हैं 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं, एक क्रिश्चियन मिशनरी कह रहे हैं कि हमने 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया। उससे कोई कह रहा था 10,000 ज़्यादा है, लगता है चंद हज़ार, 1,000 भी है, 100 भी है, 10 भी है, 1 भी है। अगर एक मुसलमान भी दीनुल हक से गलत दीन पे जाता है तो मुसलमानों पे रोना है। हम हमारा मुंह भी नहीं खोलते। ये क्रिश्चियन मिशनरी कहते हैं कि उनने सैकड़ों साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, लेकिन पार्टीशन के बाद जितने मुसलमान लोगों को उनने ईसाई बनाया, मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया, जितने लोग को उनने 50 साल में इंडिपेंडेंस के बाद, पाकिस्तान वजूद होने के बाद जितने मुसलमानों को उनने क्रिश्चियन बनाया, वो सैकड़ों साल जब हुकूमत की उतने नहीं बनाया। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है कि एक हिंदू लड़का अपने पंडित से कहता है कि हम क्यों अपने भगवान पर दूध डालते हैं और पैसे भी ज़ाया होते हैं, क्यों ना ये पैसे हम किसी गरीब को दे तो उनकी मदद भी हो जाएगी, हमारा सवाब भी हो जाएगा। तो इस पर उस पंडित ने कोई भी अच्छे तरीके से संजीदगी से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया कि कोई भी वो चीज़ जो अगर अल्लाह के नाम पे दी जाए वो हराम है। कोई भी चीज़ जो अगर अल्लाह के नाम पे दी जाए तो वो हराम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी और ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।